نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تھوڑی دیر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں، آپ حضرات مکمل سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ شریعت کی کتاب قرآن مقدس، احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے اقوال افعال جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چہار سمت سے ساری عبادتوں میں جو سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ مومن عاقل بالغ پر ہر روز 5 وقت فرض ہے، اور نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑنے والا اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کو دعوت دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ جو ہے کفر کر بیٹھتا ہے اگر عمدن ترک کر رہا ہے۔ مختلف اقوال ہیں نماز کے ترک کرنے کے حوالے سے۔ میں نماز کی فضیلت اور اس کے برکات پہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نماز کے فضائل کو، نماز کے برکات کو اور نماز کے احکامات کو ارشاد فرمایا۔ کسی مقام پہ فرمایا ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کسی مقام پہ فرمایا کہ نماز جو ہے بری اور بے حیائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ کسی مقام پہ فرمایا نماز کو قائم کرو، اور کسی مقام پہ ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ مختلف مقامات پہ مختلف آیت کریمہ نماز کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ نماز کے حوالے سے احادیث کریمہ پہ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء باجماعت پڑھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، 2 چیزوں سے نجات عطا فرمائے گا، ایک تو نار سے نجات عطا فرمائے گا اور دوسرے نفاق سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی 40 روز تک اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی 40 روز تک، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک 2 براتیں عطا فرمائے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک نار سے آزادی ہے، نار سے برات ہے، اور ایک نفاق سے برات ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں باجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے، باجماعت نماز عشاء پڑھے جماعت کے ساتھ، کہ رکعت اولا فوت نہ ہو، یعنی پہلی رکعت بھی اس کی ترک نہ ہوئی ہو، نہ چھوٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس نے 40 راتیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور اس صورت میں نماز ادا کی
कि नमाज जो 4 रकत फर्ज है उसकी पहली रकत भी तर्क ना हुई हो, रकत ऊला भी फौत ना हुई हो, तो उसके लिए अल्लाह पाक जहन्नम से आजादी लिख देगा। जरा आप गौर कीजिएगा और आप जरा बताइए कि कौन मोमिन मुसलमान है जो ये ना चाहता हो कि हमें जहन्नम से आजादी मिल जाए। और अगर दुनिया में सनद मिल जाए, दुनिया में उसकी आजादी की सनद मिल जाए, फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हम इस बात पे फख्र से कह सकते हैं, शर्त यह है कि हम पाबंदी के साथ 40 रोज तक नमाज एशा बाजमात अदा करें, और इस सूरत में कि रकत ऊला भी फौत ना हो। जब हम बेहतरीन तरीके से तहारत करते हैं, हुजूर के सुन्नत के मुताबिक वजू करते हैं और खुशू और खुजू के साथ जब बाजमात नमाज अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको जहन्नम से आजाद कर देगा, जहन्नम से उसको निजात अता फरमा देगा। जरा आप गौर कीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि खुशू और खुजू जरूरी है, बिल्कुल मुकम्मल तहारत और वजू जरूरी है। अगर कोई ऐसे ही जैसे कहीं से आया और जैसे मर्जी वैसे वजू किया, पता नहीं कि दुरुस्त वजू किया कि नहीं किया, और जाके नमाज और रकत ऊला भी पकड़ लिया हो, उसमें शामिल हो गया हो, उसके बाद 40 नहीं 80 रोज नमाज पढ़ेगा, तब भी इन बरकत और इन फैज से वो महरूम रहेगा। इसलिए कि तहारत जो है वो नमाज की कुंजी है, और नमाज की कुंजी अगर हमारी दुरुस्त नहीं है तो फिर जरा गौर कीजिए कि जिस ताले के कुंजी दुरुस्त नहीं, ताला नहीं खुलता। जब नमाज की कुंजी तहारत है और तहारत दुरुस्त नहीं तो नमाज दुरुस्त कहां से होगी, और जब नमाज दुरुस्त नहीं तो 40 रोज की फैज और बरकत जो हुजूर ने इरशाद फरमाए हैं, वो बरकत और फैज से हम कहां से माला माल होंगे। जरूरत इस बात की है कि नमाज अदा करने से पहले ये खुद का मुहासबा करें, खुद का जो है देखें कि हम जो है वजू कैसे कर रहे हैं, हमारे दिलो दिमाग में कहीं और की बात तो नहीं चल रही है, और वैसे ही जो है अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के हुजूर जाके खड़े हो गए। अगर इस तरह से हम इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बरकत से महरूम रखेगा। और अगर हम खुशी और खुजू के साथ और बेहतरीन तरीके से तहारत करने के बाद जब नमाज अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अल्लाह पाक हमें और आपको नवाजेगा। वरना आपने एक किस्सा और एक वाकया सुना होगा, एक भिखारी का। एक भिखारी एक बड़े मालदार के दरबार में पहुंच जाता है और अपने मांगने के तरीके से मांगता है। वो मालदार शख्स, वो रईस ने अपने देने के तौर तरीके के मुताबिक, अपनी सखावत के मुताबिक उसको अता कर दिया। अब उस भिखारी ने देखा क्या कि इस मालदार के दरवाजे पे कई किस्म के मवेशी, कई किस्म के जानवर पड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं। तो उस भिखारी ने कहा कि हजरत, हुजूर, रईस साहब, मालदार साहब, मैं इतने रकम से मानने वाला नहीं हूं, मुझे ये भैंस जो है मुझे आप दे दीजिए। जब उस रईस ने, उस मालदार ने उस भिखारी की बात सुनी तो समझ गया कि ये बड़ा फकीर लगता है और बड़ा लालची लग रहा है। बड़ा भिखारी जो है बहुत बड़ा भिखारी है, बहुत बड़ा लालची है। तो जब उस मालदार ने कहा कि ठीक है भैंस, जब भिखारी ने तलब की तो मालदार ने कहा कि भैंस मैं दे दूंगा, लेकिन 40 रोज तक तुम्हें बाजमात नमाज अदा करनी पड़ेगी। मैं मुख्तसरन बयान करके आगे की बात बयान करूंगा। तो जब उस मालदार ने कहा कि 40 रोज तक बाजमात नमाज अदा करनी पड़ेगी, उस भिखारी ने सोचा 40 रोज मांगूंगा भी तो कितना क्या कुछ मांग लूंगा, और यहाँ तो नमाज पढ़ने की वजह से जो है भैंस मिल जा रही है, फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो अपनी गठरी को वहीं रख देता है, मांगने के कासा को वहीं रख देता है, और 40 रोज तक गांव के मस्जिद में, मोहल्ले के मस्जिद में नमाज अदा करता रहा और नमाज पढ़ता रहा, इबादत करता रहा। 41वां दिन बादशाह के पास हाजिर हुआ और कहा कि जो है आप जो है मुझे भैंस अता कीजिए और भैंस दीजिए। उस मालदार ने कहा कि भाई तुम बड़े बेहया किस्म के हो, नमाज 40 रोज पढ़े। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नमाज जो है पढ़ने के बाद फहाशी और लहो-लईब से बंदा जो बच जाता है, और तुम जो है अभी भी लालच और हिर्स और हवस के शिकार हो। तो उस भिखारी ने उसे जवाब दिया कि अल्लाह पाक का फरमान अपनी जगह, उसमें कोई तब्दीली नहीं, और उसमें जो है इन्नल फाशाय, उसमें जो है फाश, और बेशक जो है नमाज फाश और बुराई से रोकती है, लेकिन बुराई और फाश से नमाज उसको रोकती है जो बाजमात नमाज अदा कर रहा हो, तो बावजूद नमाज अदा कर रहा हो।
वजू बना करके, मैं तो 40 रोज तक बगैर वजू के नमाज पढ़ा। जरा आप गौर कीजिए कि अगर इस तरह से नमाज अदा की जाएगी तो इंसान, मोमिन, मुसलमान जहां है वही का वही रहेगा, बल्कि उसके दिल में और गंदगी और दिल की स्याही बढ़ती चली जाएगी। जरूरत इस बात की है कि हम नमाज के फैज से फैजियाब होना चाहते हैं, नमाज के बरकत से हम बरकत लेना चाहते हैं, तो फिर हमें उस तरीके से नमाज अदा करनी होगी जिस तरह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज अदा करने को बताया है। नमाज इश्क़ मुस्तफा में जब पढ़ी जाएगी तो नमाज के फैज़ बरकत से हम जो है मालामाल होंगे। नमाज सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक पढ़ी जाएगी तो नमाज के फैज से हम फैजियाब होंगे। नमाज हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी जाएगी तो नमाज से बरकत से हम जो फैजियाब होंगे। नमाज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाएगी तो नमाज से हम फैजियाब होंगे। और नमाज मोमिन का बहुत बड़ा असासा है, नमाज मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है, नमाज मोमिन का बहुत बड़ा असलहा है। जब मोमिन जो है नमाज को खो देता है तो दुनिया की सारी चीजों को अपने सामने रखने के बाद भी सुकून मैसर नहीं होता है, खुशहाली नहीं आती है। जरूरत इस बात की है कि नमाज हमें पाबंदी से अदा करनी चाहिए, और नमाज जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमें चैन सुकून अता फरमाता है, हमारी तमाम तर परेशानियां दूर अता फरमाता है, और हम गुनाहों से छुटकारा पा जाते हैं और गुनाहें हमारे बदनों के झड़ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी नमाज पढ़ने की वजह से उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ा तो फजर और ज़ोहर के दरमियान की जो गुनाह है अल्लाह पाक उसको मिटा देता है। फिर असर की नमाज पढ़ता है तो ज़ोहर और असर के दरमियान की गुनाह को अल्लाह पाक मिटा देता है, और असर के बाद जब मगरिब की नमाज पढ़ता है तो असर और मगरिब के दरमियान के जो उनके छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह पाक उसको मिटा देता है। जब फिर इशा की नमाज अदा फरमाता है तो मगरिब और इशा के दरमियान के हुए सरजद और खताओं को अल्लाह पाक जो है मिटा देता है, खत्म कर देता है, नामे अमाल में दर्ज नहीं रहने देता। और जब फिर फजर की नमाज अदा करते हैं तो इशा और फजर के दरमियान अगर कोई खता हुई है, कोई लग़िश हुई है, अल्लाह पाक उसको जो है दूर फरमा देता है। जरा कुर्बान जाइए नमाज के बरकत पे, नमाज फैज पे। नमाज जो है एक बहुत बड़ी इबादत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयतुम लव अन्न नहरन बाज़ अहदिकुम यग़सिलु फ़ीह कुल्ल यौमिन ख़म्सन हल यब्क़ा मिन दरनि शैउन क़ालू ला यब्क़ा मिन दरनि शैउन क़ाल फ़ज़ालिका मिस्लु सलवातिल ख़म्स। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा, अपने गुलाम से इरशाद फरमाया और फरमाया कि जरा बताओ, तुम्हारे दरवाजे के सामने, तुम लोगों के दरवाजे के सामने अगर नहर जारी हो और तुम में से कोई शख्स उसमें जा करके 5 दफा दिन में नहाता हो, गुस्ल करता हो, नहा करके आता हो, तो जरा बताओ उसके बदन पे कोई मैल बाकी रह जाएंगे? सहाबा इकराम फरमाते या रसूलल्लाह, फिर उसके बदन पे कोई मैल बाकी नहीं रह जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह तुम 5 मरतबा अपने दरवाजे के सामने जारी नहर पे जब नहाते हो तो तुम्हारे जिस्म पे कोई मैल बाकी नहीं रहता, इसी तरह जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह के बारगाह में 5 वक्त नमाज अदा करता है तो उसके बदन पे कोई गुनाह नहीं रहता, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से साफ और सुथरा और पाक कर देता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक बेहतरीन इबादत अता फरमाया है। वो बेहतरीन इबादत क्या है? नमाज है। हमें चाहिए कि हम नमाज की खुद भी पाबंदी करें और अपने अहल अयाल को पाबंदी कराएं, इसलिए कि हमसे जब पूछा जाएगा कल बरोज़े महशर क़यामत के दिन, सबसे पहले जो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, और नमाज ही हमारा अगर पहला ही सवाल जो है जवाब गड़बड़ हो गया और पहले ही मामले में हम जब फंस जाएंगे तो फिर हम फंसते चले जाएंगे। नमाज इतनी खूबसूरत इबादत है और इतनी बेहतरीन इबादत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है एक मकाम से गुजर रहे थे, देखते क्या है, एक जो है जानवर है जो एक कीचड़ में जाता है और फिर निकलता है, और जाने के बाद फिर जो है नहर में, वो दरिया में जाकर के अपने आप को साफ सुथरा कर लेता है और कीचड़ में जाता है फिर साफ कर लेता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब जानवर को देखा तो ताज्जुब फरमाया। ताज्जुब फरमाने के बाद सैयदना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है सिदरा के मकीन तशरीफ लाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि आप ताज्जुब किस बात पे कर रहे हैं, क्यों ताज्जुब हो रहा है आपको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जिस जानवर को देख रहा हूँ
कि ये कीचड़ में लोट-पोट होता है और फिर जाकर के दरिया में जो है गोता लगाता है और साफ सुथरा हो जाता है। बात कुछ समझ में नहीं आती है। हम और आप जब ताज्जुब करते हैं तो हमारे अहलो अयाल वाले पूछते हैं क्या मामला है, क्यों फिक्रमंद हो, क्या सोच रहे हो। और जब अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम जब फिक्रमंद होते थे, ताज्जुब करते थे, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक का पैगाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है नबी के पास लेकर के आते। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप ताज्जुब मत कीजिए, ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल है, और ये जो आप कीचड़ देख रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुनाह की मिसाल है, और ये जो नहर में साफ सुथरा होता हुआ नजर आ रहा है ये जो है उम्मत मोहम्मदिया के नमाजियों की मिसाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ी तफसील जानना चाहते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो तफसील के साथ वाक़े को बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जब उम्मत मोहम्मदिया का कोई फर्द गुनाह से लथपथ हो जाएगा, उसके बाद जो जाकर के जब वो नमाज पढ़ता है तो उस जो गुनाह से लथपथ हुआ है अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने के बाद उसके गुनाह को दूर कर देता है और फिर जो है वो उससे पाक साफ हो जाता है। जिस तरह से ये जानवर जो है साफ सुथरा हो रहा है, उम्मत मोहम्मदिया का मोमिन मुसलमान शख्स जो गुनाह में मुलविस होता है, इबादत करता है, रब के बारगाह में नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज के तुफैल में उसके गुनाहों को उसके जिस्म से दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि हम नमाज अदा करते हैं और हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। अगर गौर कीजिएगा तो आपको मालूम होगा मेरा नबी वो जो सारे नबियों का इमाम है, मेरा दीन हो जो सारे दीनों का इमाम है, मेरी इबादत हो जो सारी इबादतों में अफजल है, हम उम्मती हो जो सारे उम्मतियों में अफजल हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें इस चीज को महसूस करना होगा, इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। जब हम इस चीज को एहसास करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा एहसान है कि हमें उम्मत मोहम्मदिया पैदा फरमाया, नमाज जैसी बेहतरीन इबादत अता फरमाई और नमाज जैसी बेहतरीन हमें जो है माफी मांगने का तरीका अता फरमाया। जब हम इन चीजों पे गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज एक बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन इबादत है, हमें और आपको इसकी पाबंदी करनी चाहिए। चलते चलाते एक मैं बात आपको अर्ज करता चलो कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब हम और आप मस्जिद में आते हैं और तबबंदी करते हैं उस वक्त ये नहीं देखा जाता, हालांकि हम रब के बारगाह में हैं और रब तबारक व तआला के बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं, उस नमाज के वक्त, उस जमात के वक्त, उस तबबंदी के वक्त ये नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अदना है, कौन आला है, कौन मुफ्ती है, कौन मुहक्किक है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन क्या कुछ है, कुछ भी नहीं। एक सफ में खड़े होंगे और एक इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। शायर ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और ये नमाज की बरकत इतनी, नमाज और नमाज का तर्क करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। नमाज का तर्क करने वाला कितना बड़ा गुनाहगार है, बस इस बात पर रोशनी डाल के मैं रुखसत हो जाता हूँ। बनी इसराइल को आपने वाक़या समाज फरमाया होगा कि बनी इसराइल में एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है और आने के बाद अर्ज करती है कि हमने बहुत बड़े गुनाह कर लिए हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाह को बख्श दे, हमारे गुनाह को माफ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया क्या गुनाह करके आई हो कि इतना परेशान लगती हो, कौन से गुनाह सरजद कर दी। वो औरत कहती है ऐ अल्लाह के नबी, हमसे ज़िना जो है, हम ज़िना के मुर्तकिब हुई, ज़िना कर बैठी और उसके बाद जो औलाद हुई हम उसको कत्ल कर दिए और उसको मार डाले। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा गुनाह है कि ज़िना भी की और जो औलाद पैदा हुआ उसको मार भी डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, सुनने के बाद उस औरत को भगाते हैं और कहते हैं निकल जा मेरे सामने से, कि तुम्हारी नाहुसत की वजह से अल्लाह का अजाब और आग न बरस जाए, तमाम लोगों पे जो है अजाब न आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसको बाहर निकालते हैं और अपने सामने से हटाते हैं, इतने में सिदरा के लकी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करते हैं ऐ मूसा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ है कि जो औरत आपके सामने तौबा करने आई और तौबा करके माफी मांगने आई, फिर आप उसको अपने सामने से क्यों भगाते हैं? आपको मालूम भी है कि इससे भी बड़ा गुनहगार कौन है, इससे भी बड़ा बदबख्त कौन है, इससे भी बड़ा जो है सजा के मुस्तहिक कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी नजर में इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, मेरी नजर में इससे बड़ा जो है बदकार कोई नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मूसा, जो उम्मत मोहम्मदिया का
जो शख्स जो है नमाज अदा नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में इस औरत से भी बदतर है, इस औरत से भी ज्यादा गुनहगार है। आप सोच रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? बनी इसराइल के वाक़े को आप अपने ज़हन व फिक्र में बैठाइए और गौर कीजिए कि क्या कुछ नमाज के तर्क करने वालों को क्या कहा गया। जानी से भी बदतर जो है बेनमाजी है, और इतने बड़े गुनाहगार होने के बाद भी औरत को कहा जाता है कि इस औरत से भी ज्यादा अगर कोई बदकार और कोई बदबख्त है वो बेनमाजी है। जरा गौर तो कीजिए। इसी तरह बाद सालेहीन से मरवी है, एक आदमी ने अपनी मुर्दा बहन को जब दफन किया, एक मुर्दा बहन को जब एक भाई ने दफन किया और दफन करने के बाद जब लोग मिट्टी डाल दिए, तब उसको ख्याल आया कि उसकी जो है थैली उस कब्र में छूट गई थी, उसकी थैली जो है उस कब्र में रह गई थी। उस थैली से मुराद जो है दिरहम दिनार का थैली जो है थे। बासालेहीन फरमाते हैं कि उस भाई का बहन के कब्र में जो है थैली रह गई थी। जब सारे लोग चले जाते हैं तो भाई बहन के कब्र से मिट्टी को हटाता है और मिट्टी को हटाने के बाद अपनी थैली को लेने के लिए कब्र में उतरता है। देखता क्या है, आग के शोले भड़क रहे हैं, आग के शोले जो है भड़क रहे हैं। दौड़ता हुआ बाहर चीखता हुआ निकलता है और आने के बाद अपनी माँ से दरियाफ्त फरमाता है, माँ जरा बता तो सही मेरी बहन कौन सी गुनाह करती थी, क्या करती थी। अब जब ये बात माँ से उस बच्चे ने पूछा है, उस बहन के भाई ने अपने माँ से जब ये दरियाफ्त किया है, माँ कहती क्या माजरा है, ये सवाल क्यों कर रहे हो। उस भाई ने कहा कि मेरी ऐसी मेरे साथ मामलात हुए, मेरी थैली कब्र में छूट गई थी, हमने मिट्टी को हटाया और थैली को लेने के लिए कब्र में मैं जब उतरा तो देखा क्या बहन जो है आग के शोले में जल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर कीजिए कितना बड़ा अजाब है, और ये अजाब क्यों है जरा गौर से सुनिएगा। जब उस शख्स ने माँ से पूछा तो माँ फरमाती है, बेटे वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन नमाज को जब वो पढ़ती थी तो मुअख्खर करके पढ़ती थी, नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी। अल्लाहु अकबर। नमाज को ताखीर करके पढ़ने की बुनियाद पे कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। जरा आप गौर तो कीजिए कि जो सिरे से नमाज की पाबंदी ही ना करता हो, जो सिरे से नमाज अदा ही ना करता हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर क्या नाजिल फरमाएगा, कैसा अजाब अता फरमाएगा अल्लाह के बारगाह में। आइए आज से अभी से तौबा कीजिए। बारह जो नमाज तर्क हो गई वो तर्क हो गई। अब हम नमाज को तर्क नहीं करेंगे बल्कि पाबंदी के साथ नमाज और नमाज के वक्त पे अदा फरमाएंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनीन पर अपने वक्तों में फर्ज है। अगर हम वक्त को जायल करके, वक्त को खत्म करके हम नमाज को मुअख्खर ताखीर करके अगर पढ़ रहे हैं तो फिर याद रखिए कि हम फिर भी गुनाह कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नहीं पढ़ने से तो बेहतर है कि हम पढ़ रहे हैं। आज मोमिनीन और मुसलमान का हाल आप देखिएगा तो आपको मालूम होगा, अजानें हो रही है, लोग दाएं बाएं टहल रहे हैं, जमात हो गई, लोग गपशप में लगे हुए हैं, लोग अपने कलाम में लगे हुए हैं। जरा गौर तो कीजिए, कल जब कब्र में हम जाएंगे कोई पुरसाने हाल ना होगा, वहां मेरे साथ और हमारे साथ कौन आएगा? यही अमाल आएंगे, यही नमाज आएगी, यही जो है ज़कात आएंगे और यही रुकू और सजदे हमारी मदद फरमाएंगे। रब के बारगाह में जब हम खड़े होंगे कोई हमारा वहां साथ नहीं देगा, कोई हमारे साथ नहीं होगा। सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारे लोग दाएं बाएं भाग रहे होंगे अपने अपने हिसाब किताब के, और सारे लोग अपने रिश्तेदार को जो है भूल जाएंगे। माँ बेटे को नहीं पहचानेगी, बेटे माँ को नहीं पहचानेगी। अगर बेटा जाके कहेगा भी तू मेरी माँ है, तो माँ कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अपने लिए परेशान हूं। जब माँ बेटे के पास अगर आएगी तो बेटा कहता हुआ नजर आएगा मैं तो अपने लिए परेशान हूं, माँ मैं कुछ नहीं कर सकता। जरा गौर तो कीजिए, अब भी वक्त है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, अब भी वक्त है मस्जिदों को आबाद कीजिए, अब भी वक्त है अपने पेशानियों में सजदे की तरफ को लाइए। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और पेशानियों में सजदे की तरफ अता फरमाए, नमाज पर जगाना की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन 5 वक्त नमाज अता फरमाता है तो वैसे ही मिसाल है जैसे कोई नहर में 5 वक्त गुस्ल करता है, गुस्ल करने के बाद उसके जिस्म पे कोई गुनाह कोई मैल बाकी नहीं रहते। इसी तरह एक मोमिन मुसलमान जब नमाज अदा करता है तो उसके जिस्म पर भी कोई गुनाह बाकी नहीं रहते। और अगली हदीस भी, एक आखिरी हदीस आपके सामने पेश करके मैं रुखसत हो जाता हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो है हम बाहर निकले, दरख्त के दाएं बाएं थे,
पतझड़ का मौसम था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के एक शाख को पकड़ा और हिलाया, उसके पत्ते नीचे गिरे। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, जानते हो उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल, उन नमाजियों की मिसाल भी इसी पत्ते की तरह है जो नमाज अदा करते हैं। उनके जिस्म से जिस तरह से इस दरख्त के शाख से पत्ते झड़ रहे हैं, उसी तरह नमाजी मुसलमान का जिस्म से जो है गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी इबादत हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। हमें चाहिए कि नमाज की हिफाजत करें और मुकम्मल पाबंदी के साथ वक्त पे जो है नमाज अदा करें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।